بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ورلڈ۔ دوستو پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاق دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھیٹ چڑھے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل شروع کب ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے، آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ دوستو آج ہم پورنوگرافی کے ہر اینگل پر بات کریں گے۔ دوستو تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے، صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے، جبکہ صلیبی فوجی رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شغاف صدائیں اور مسلمان فوج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس افیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فتین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوان کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے، ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی و روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے یکسر نا آشنا ہے۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رانائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تقریب کاری کرنا پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی ہے، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاعرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورنوگرافی کے نام سے پہچانا گیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔
नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि खुद भेष बदलकर उन नौजवानों का पीछा किया। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बसाते खुद भेष और आवाज बदलने की माहिर थे। तारीख में मुतअद्दिद बार उनकी एक दूसरी शख्सियत के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रवायात मौजूद है। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद सलेबी आला अफसरान को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने एक अफसर से पूछा, रात जिस शख्स से तुमने कहा था मैं अयूबी को उसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, तो बताओ वो कौन था? वो सलेबी अफसर बोला, हुजूर वो एक अरबी ताजर था जिसकी गलत बयानी ने हमें आपके सामने ला खड़ा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा था, वो मैं खुद था। वो हैरत ज़दा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का चेहरा तकता रह गया। दोस्तों, फौज के कुछ नौजवानों की पुरस्कार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद उनके पीछे गए तो मालूम हुआ फौजी क़ियामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन उनके पास फहश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो उनमें ऐसी फहश मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान शख्स के लिए जुनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से इतलाआत मिली कि शहर में फहश तस्वीर के कुबा खाने खुल गए हैं जहां जिनसी इश्तिआल अंगेज तस्वीर दिखाई जानी है। उन नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जा रही है। साथ ही ये भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तारीखी तकरीर में कहा था, मुसलमानों सुन लो, हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है। अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा, इसीलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है। क्योंकि जरूरी नहीं जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। ख़वातीन और हज़रात, सलेबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलेबी तारीख का मुताला करें तो आपको ये शख्स पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलेबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने उनमें जान डाल दी। इसी के मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्वर और मंजर नगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। उनसे ऐसी फहश तस्वीर कशी करवाई गई कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। वो शख्स जिस पर लोग एक हद तक सोचते थे फिर उसे बेहद सोचने लगे। सलेबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तरह इदराक न हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने इसे बतौर हथियार अपनाया। सलेबियों से इस आर्टोग्राफी की नई जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबा की पहाड़ियों में बनाई हुई पुरसरार जन्नत में एक और हथियार का अजाफा हुआ। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद चल बसे। सलेबी भी अपना दम खम खो चुके थे, लेकिन उनका तैयार करदा जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फहाशी के जरासीम फैलाता रहा। यूं सदियां बीत गई, जमाने के रंग ढंग बदल गए, कई सकाफतें आईं और मिट गई। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलु हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फजा पैदा होना शुरू हुई थी। नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर से नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। लकड़ी से जिनसी अज़ू तराशी गए। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छांट कर जिनसी अज़ू की तरह बनाया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे पर लोगों का हजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जौक दर जौक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे पोर्न हाउस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल होता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फनकारे दरख्तों पर अय्या होते थे। दोस्तों, 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार इसे पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस कैमरा पोर्नोग्राफी में मसला यह था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए पोर्नोग्राफी का जिन मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला न रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ।
इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही थी। दोस्तों 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा एक मिनट में 120 तस्वीर कैप्चर करता था। फिर उन तस्वीर को चरखा नमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल की सूरत चढ़ाया जाता, फिर उस चरखे को हाथ से चलाया जाता था। उससे तस्वीर इस तेजी से घूमती मानो ऐसे लगता जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इसी तरीका अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो हम हरकत करती, जिंदा महसूस होती HD वीडियोस देखते हैं, दरअसल ये हजारों तस्वीर का मजमुआ है जो इस तेजी और सफाई से प्ले होती है कि हमें तस्वीर हरकत करती नजर आती है। दोस्तों वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ। पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई। इसे लोमेर ब्रदर्स इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्बर्ट किर्चज थे। दोस्तों पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरतों को बरहना अंदाज में होशरुबा अदाएं दिखाते पेश किया गया। ये फिल्म नहायत मुनाफाबख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इसके साथ ही लोगों में सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जनून में बदल गई। यूं यूरोप की गली कोचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गई। दोस्तों 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मंजर पहले से ज्यादा साफ और मियारी रिकॉर्ड होने लगे। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। आवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहिल समंदर अयाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। दोस्तों 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बर्रे सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले ये सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। इसे वीडियो दिखाने के लिए यूरोपीय कंपनीज ने पाकिस्तान व भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाहिए। इसके जवाब में सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि पोर्नोग्राफी को एक बकायदा जुर्म करार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक में सेक्स वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हुई, क्योंकि एक ही सीन हर फिल्म में देखकर अवाम बोर होने लगी। दूसरा बजाते खुद उनका मुआशरा इतना आजाद हो चुका था कि वीडियो देखने की जरूरत रोज बरोज कम होने लगी। इसी सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने पोर्नोग्राफी के नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा। दोस्तों यूं पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। इस पोर्न प्रोजेक्ट में सेक्स को कई इकसाम में तकसीम कर दिया गया। हर किस्म का अपना एक मुनफरद अंदाज होता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट का विजिट करें तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोपीय आवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का इज़्दिहाम मच गया, क्योंकि इस दफा फहाशी के मनाजर रवायती तरीकों से हटकर रिकॉर्ड किए गए थे। ये प्रोजेक्ट पोर्न इंडस्ट्री के लिए आबे हयात की सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि इसी की बदौलत हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर सामने आई। मसलन एक शख्स धुआंधार जिनसी मनाजर के बजाय रिलैक्स पोर्न देखना पसंद करता है तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी मौजूद होगी, और यकीनन 5 साल बाद भी वो रिलैक्स पोर्न देखना ही पसंद करेगा। यूं हर शख्स की जिनसी ख्वाहिश के मुताबिक उसे पोर्नोग्राफी का नशा मिलने लगा। दोस्तों 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बड़े सगीर में आम हो गई। अगरचे 70 की दहाई में कंप्यूटर्स भी पाकिस्तान में उक्का दुक्का जलवागर हो चुके थे, लेकिन आम लोग इससे ना आशना थे। लिहाजा लोग पर्दा स्क्रीन से हटकर VCR की तरफ मुतवज्जा हुए। इसी दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी शान से उभर कर सामने आई। यूरोपीय कंपनीज ने जब एशियाई लोगों का VCR की तरफ रुझान देखा तो उनकी आंखों में लालच की चमक पैदा हुई। यूं फर्स्ट फिल्में पाकिस्तान व भारत और दीगर एशियाई ममालिक में ब्लैक होकर बिकने लगी। 1958 में यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री नामालूम हाथों में चली गई। पहले ये सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर इसे पूरी दुनिया को जिनसी दहशतगर्दी के लिए चुना गया। पोर्न इंडस्ट्री में एक ऐसा जिनसी तरीका मुतारफ करवाया गया जो बराह रास्त कैंसर, गिलोरिया और दीगर तबाहकुन बीमारियों का मौजूब है। इस तरीका को ओरल सेक्स कहते हैं। ओरल सेक्स। आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी, पोर्न फिल्म की चाहे कोई भी कैटेगरी वीडियो देख लें, फिल्म के स्टार्ट में ओरल सेक्स का मुजाहरा जरूर किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये भी एक बकायदा जिनसी अमल का हिस्सा है। साइंसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जिस्म में एक मादा मनी के साथ खारिज होता है जो DNA में अक्सर खराबी का बास बनता है।
अगर वो मुंह के जरिए मैदे में चला जाए या दांतों में उसकी कोई बाकियात रह जाए तो वो मुंह के खुलियात में P16 प्रोटीन नामी मादा पैदा कर देता है, जो मुंह के कैंसर और ब्लड प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज यहूदी लेबॉरेटरीज के अलावा कहीं नहीं मिलता। इन बीमारियों की तमाम दवाइयां इस्राएली कंपनीज नहायत महंगे दामों फरोख्त करती हैं। इन बीमारियों से मुतासरा मरीजों के चेहरे बदल जाते हैं और मौत सिसक कर आती है। लिहाजा ओरल सेक्स के शौकीन शौक पूरा करने से पहले चश्मे तसव्वुर में अपना अंजाम जरूर सोच लें। ओरल सेक्स दरअसल खुफिया यहूदी एजेंसीज की आमदनी का जरिया भी है और उनका हथियार भी है। इसी के जरिए लोग उनका शिकार बनते हैं और उन्हें लाखों डॉलर लुटाते हैं। दोस्तों, अब ओरल सेक्स के साथ स्कैट ईटिंग और पिस ड्रिंकिंग सेक्स की वीडियोस भी अब मंजरे आम पर आ रही हैं, जो कि यहूदी एजेंसीज की साजिश का मुंह बोलता सबूत है। इन पोर्न वीडियोस में काम करने वाले अदाकारों को शूटिंग के फौरी बाद इनके मुंह में मखसूस स्प्रे किए जाते हैं, जो मुंह में गिरी गलाजत के तमाम जरासीम खत्म कर देते हैं। मेरे ख्याल से अब आप ओरल सेक्स को समझ गए होंगे कि क्या चीज है। हमारे आम उलमा का ख्याल है कि पोर्न वीडियोस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होती हैं। हकीकतन ऐसा नहीं है। यहूदी एजेंसीज का टारगेट पूरी दुनिया के मज़ाहिब हैं, क्योंकि तमाम मज़ाहिब इनके इंतहा पसंदाना नजरियात को हर सूरत रद्द करते हैं। यहूदी नहायत महारत से शातराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिन्हें वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी खुदा का तसव्वुर ना हो, जहां कोई तहजीब ना हो, जहां कोई कानून ना हो, बस एक ही असूल हो और वो है यहूदी गुलामी। इस मिशन की तफसीलात बहुत चश्मकशा हैं और दिल आवेज हैं। बस इतना कहूंगा कि पूरी दुनिया पर यहूदी राज के लिए हर वो हथकंडा आजमाया जा रहा है जो आज की तारीख में मुमकिन है। लोगों को हर तरफ से जिनसी, नफ्सियाती, सियासी, मजहबी, समाजी और हर तरफ से फंसाया जा रहा है और हम लोग बेखबर फंस रहे हैं। यहूदी एजेंसीज के खुफिया हथकंडों पर हकीकत का चाकू चलाने के लिए यूट्यूब पर अलमास याकूब के नाम से एक चैनल मौजूद है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसका मुतालिया जरूर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ उस भाई का शुक्रिया भी अदा कीजिएगा जो नहायत मेहनत से यहूदी हथकंडों पर पर्दा उठा रहा है। दोस्तों, 20वीं सदी का सूरज तलु हुआ। एशिया में अभी धुंधले म्यार की वीडियो टेक्नोलॉजी का दौर खत्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोपीय ममालिक में HD टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आ चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी आज की दुनिया, एशियाई दुनिया, मगरब से 100 साल पीछे चल रही है। हॉलीवुड इंडस्ट्री उस वक्त बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी जब अभी हमारे यहाँ धुंधले म्यार की वीडियोस चल रही थी। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फायदा उठा रहे थे, जबकि पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विस 1952 में आई। इससे यूरोपीय कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में पहली बार प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। इसके पहले इंजीनियर मनीर अहमद खान थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर को कंट्रोल किया। इसकी इब्तिदाई स्पीड 128 KB थी। 1995 में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए खरीद लिया। सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी आवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सलाहदें फलांगता हुआ दाखिल हुआ। यूरोपीय मुल्क में पहले पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर या जिनसी तस्वीरों के जरिए पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने ये झंझट खत्म कर दिया। इंटरनेट ने बेकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया, जिससे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड टूट गए। यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिलती है। पाकिस्तानी और भारतीय सुन ले, यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिलती है। 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट्स का विजिट करते हैं, जबकि भारत से रोजाना 6 करोड़ लोग फहश वेबसाइट्स का विजिट करते हैं, जिससे पोर्न इंडस्ट्री रोजाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। ये वो तादाद है जो वेबसाइट्स ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट्स तक पहुंच ही जाती है, जबकि गूगल पर पोर्न तस्वीर देखने वालों की तादाद पाको भारत में करोड़ों में है। दोस्तों, कहते हैं हर चीज की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली यूरोपीय आवाम उकता थी, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाले अदाकार और अदाकाराएं नहायत खूबसूरत होती हैं और उनका जो जिनसी वीडियोस HD रिजल्ट्स होता है वो भी नहायत दिलकश होता है और उनकी जिनसी पावर भी जबरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फिल्म को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर उन्हें अपने पुराने साथी पर गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसा दराज पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नफ्सियात के इस दायरे ने पोर्न इंडस्ट्री मालकान को एक बार फिर सोच के कटहरे में खड़ा कर दिया। यूं 2014 में एक मुनफिज टेक्नोलॉजी वजूद में आई,
इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स गर्ल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन दांत से एक नहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है, फिर उसे इस कदर हकीकी बनाया जाता है कि असल वजूद और उस सिलिकॉन गर्ल सेक्स के मुजस्समे में कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। उसका जिस्म इतना नरम और नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद की नजाकत को भी रद्द करता है। उसकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा है कि बस जान डालने की कमी रह गई है। आप स्क्रीन पर सिलिकॉन सेक्स गर्ल्स की कुछ तस्वीर मुलाहिजा कर सकते हैं। इन्हें देखकर बार बार आंखें धोखा खाती हैं। इन्हीं सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं कि फाहिशी का सुकून 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह खवातीन के लिए सिलिकॉन बॉयज नहायत खूबसूरत मुजस्मे तराशे गए हैं। इन मुजस्मों की एक अहम खासियत ये भी है आप इनकी जिस्मानी लचक को किसी भी जाविये के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन सिलिकॉन जिनसी मुजस्मों में कुछ ऐसे राज भी चिपके हैं जो आपको दायमी जिनसी मरीज बना सकते हैं, क्योंकि तमाम सेक्स मेडिसिन और प्रोडक्ट इन्हीं मुजस्मों की खालक बना रहे हैं। एक तरह से ये लोगों को बीमारी लगाने के पैसे भी लेते हैं और इलाज के नाम पर गाहक भी बनाते हैं। 2015 में सिलिकॉन मुजस्मों को यूरोपीय मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसे ही ये मुजस्मे मार्केट में आए तो खरीदारों के हजूम लग गया। इन्हीं मुजस्मों की बदौलत मर्द व औरत का आपसी जिनसी ताल्लुक भी कमजोर हो गया, जिससे शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी वाक़या हुई। दोस्तों, इसी के साथ वर्चुअल रियलिटी डिवाइस ने भी रही सही को असर पूरी कर दिया। यूरोपीय ममालिक में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ गई थी, लेकिन 2010 के बाद ये कमी शदीद तर हो गई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इसी सूरत हाल से घबराकर बास ममालिक में चिल्ड्रन हाउस कायम कर दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात हो जाए यूरोपीय ममालिक की मौजूदा सूरत हाल पर। यूरोपीय ममालिक में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ गई थी, लेकिन 1910 के बाद ये कमी शदीद तर हो गई, क्योंकि वहाँ औरत और मर्द का जो अज़दवाजी ताल्लुक है अब वो इतना शदीद और मजबूत नहीं रहा। शरह पैदाइश के हवाले से दूसरे तमाम मज़हब और लिबरल लोगों में वाज़ेह कमी वाक़या हुई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इसी सूरत हाल से घबरा कर बाज ममालिक में चिल्ड्रन हाउस कायम कर दिए गए हैं, जहां औरत व मर्द को भारी रकम देकर बच्चा पैदा किया जाता है। बच्चे की तमाम अफजाइश चिल्ड्रन हाउस की जिम्मा होती है। हालैंड में बच्चा पैदा करने वाली औरत को $10,000 दिए जाते हैं। जब औरतों ने इनकार किया तो रकम उनकी मर्जी पर मुतय्यन की गई। हमारे उलमा हज़रात चाहे जो भी ख्याल करते हो, लेकिन दोस्तों ये सच है कि पोर्नोग्राफी का ज्यादा नुकसान खुद उन्हीं का हुआ जिन्हीं की इजाद थी। आज अगरचे हम मुसलमान भी उसका शिकार हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मजहब, सकाफत और नस्ल को लिए बराबर चल रहे हैं, जबकि मगरबी मुआशरा इस कदर टूट चुका है कि आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने पर गौर किया जा रहा है। 2013 में अमेरिकी पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ भी किया गया कि 2050 तक इस्लाम की अफरादी पावर पूरे यूरोप पर हावी हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम को हर तरफ से घेर कर महदूद किया जाए और इसे एक गरीब मजहब बनाया जाए। लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा करके इन्हीं अपने आजाद मुआशरे का हिस्सा बनाया जाए। दोस्तों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इस्लामी शिद्दत पसंदी दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया पर मलहद इस्लाम को नोच रहे हैं। सियासत में बड़े बड़े लिबरल दाखिल किए जा रहे हैं। मकबूजा इलाकों में मुसलमानों का कत्ल आम करवाया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन जान चुका है कि उसका हथियार खुद उसकी कौम को खत्म कर चुका है। लेकिन जाते जाते मुसलमान पर आखिरी वार जरूर करते जाओ। तो दोस्तों, ये थी पोर्नोग्राफी की वो हिस्ट्री जिसे अभी तक किसी भी चैनल या मीडिया अदारे ने एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन हमारे चैनल एक्सपोज वर्ल्ड ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए एक बार फिर तारीख की गहराइयों में झांका है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी साइंस, तारीख और दुनिया के पुरस्कार राजों पर ऐसी ही दिलचस्प रिसर्चेस सामने लाएंगे जिन्हें पहले कभी एक्सपोज नहीं किया गया। सो प्लीज, अगर आपको कुछ नया जानने में दिलचस्पी है तो हमारा चैनल एक्सपोज वर्ल्ड जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा मजीद डॉक्यूमेंट्रीज बराह रास्त आप तक पहुँच सकें।